Hello kids, I hope you all are fine at your home and doing work. So here I am, your computer teacher, Miss Neha. I think you all have seen computer from outside. Today we will discuss computer from inside. So let's start. Today's our first topic is system unit. Our first topic is system unit. Let's start. System unit is a box-like case that stands near the monitor. System unit, what is system unit? It's a box-like case that stands near the monitor. जो monitor के पास होता है. Okay, see this picture. Okay, this is the system unit. Some system units are also placed below the monitor. कुछ system units कहाँ होते हैं? Monitor के नीचे. System unit is the most important part of the computer system. Okay, it protects the internal electronic components from damage. इस सिस्टम यूनिट क्या करता है? जो भी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या करता है? डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस. इसका सेकेंड नेम क्या है? कंप्यूटर केस. The electronic components and most of the storage devices of a computer reside inside the system unit. सभी जितने भी electronic components, all the electronic components, most of the storage devices, all are reside in this system unit. Okay. Other devices like keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, etc. normally occupy space outside the system unit. Okay, these are the devices, they are placed outside of the computer system. Okay, so this is the first topic of our system unit. Our next topic is components inside the system unit. Which are the components that inside the system unit? Components inside the system unit includes motherboard, CPU, memory, disk drive, power supply and ports. We will discuss one by one each of them. First is motherboard. What is motherboard? A motherboard is a large circuit board inside the system unit. What is a motherboard? This is a large circuit board that inside the system unit. It is also known as system board or main board. Motherboard's another name is system board and main board. Okay. It holds many electronic components such as the processor and main memory. Okay. In this circuit board क्या क्या होता है? CPU, that is processor, and main memory. It also provides connectors for other devices like mouse, keyboard, monitor, etc. ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कनेक्टर्स, जिसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं? माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर. ओके. Next topic is CPU. What is CPU? Just like your brain controls each part of your body, the computer also have a brain which controls each part. ओके. सो जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्रेन, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को. जो क्या करता है? कंप्यूटर के ईच पार्ट को क्या करता है? कंट्रोल. ओके. The brain of the computer is called Central Processing Unit, that is CPU. What is the full form of CPU? Central Processing Unit. Okay, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU. और CPU की फुल फॉर्म क्या है? Central Processing Unit. All devices that are connected to the computer first communicate with the CPU in order to carry out a task. कोई भी टास्क, कोई भी वर्क करना है तो सभी डिवाइसेस को फर्स्टली किससे कम्युनिकेट करना होगा? सीपीयू. दिस इज आवर सीपीयू. ओके. सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. सीपीयू इज अनदर नेम इज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. क्लियर? Speed of CPU. What is the speed? How we can measure speed of CPU? The speed of CPU is measured in megahertz
और गीगाहर्ट्ज। ओके, हम इसकी स्पीड कैसे मेजर कर सकते हैं? इन टू the measure CPU speed is measured in megahertz or gigahertz. Okay, the faster the speed of the CPU, the faster the computer can operate. जितनी फास्ट CPU की स्पीड होगी उतना ही फास्ट हमारा कंप्यूटर क्या होगा, वर्क करेगा। द स्पीड ऑफ CPU इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऑल द कंपनीज, जो भी जितनी भी कंप्यूटर बनाने की कंपनीज हैं, दे आर मेकिंग कंप्यूटर, मेकिंग CPU, दैट उनकी स्पीड जितनी फास्ट होगी उतना ही अच्छा हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। और CPU की जो स्पीड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी। मेमोरी, RAM and ROM. As we all have memory that help in remembering the things, computer also have a memory which remembers many things by storing data inside it. जैसे हमारे पास क्या है, हमारे ब्रेन में क्या है, मेमोरी। हम सब चीज़ें कैसे याद रखते हैं, हमारी मेमोरी होती है। सेम लाइक कंप्यूटर में भी क्या होती है, मेमोरी। जिससे क्या होता है, वो क्या करता है, जितना भी हमने डेटा उसके अंदर स्टोर किया है वो सब कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी। मेमोरी इज इन द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बिट्स और बाइट्स। हम जो कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी होती है उसे हम कैसे मेजर करते हैं, बिट्स और बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज? 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ओके, कंप्यूटर ओनली वन लैंग्वेज समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? दैट इज 0 और 1। तो बिट्स क्या होते हैं, 0 और 1। और व्हेन, जब हम लोग 8 बिट्स, व्हेन वी कंबाइन 8 बिट्स मेक 1 बाइट। ओके, कंप्यूटर मेमोरी यूजली कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर चिप्स सच एज रैम एंड रोम ऑन द मदरबोर्ड। सो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, 1 और मोर हम रैम और रोम चिप्स को यूज कर सकते हैं ऑन मदरबोर्ड पे। ये मदरबोर्ड पर होती हैं। ओके, रैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। रैम की अनदर नेम्स क्या है? प्राइमरी मेमोरी and main memory that stores data, any instruction temporarily in the system, in the computer. Okay, तो जो रैम क्या होती है, वो क्या करती है, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर करती है, किसमें, कंप्यूटर में। ओके, when you start the computer, certain files get loaded from a storage device such as hard disk into RAM. These files remain in RAM as long as the computer is running. Okay, जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, when you start your computer, तो फाइल्स क्या होती है, स्लोली स्टोरेज डिवाइसेस से हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क से रैम में आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, और दीज फाइल ये तब तक रहती हैं रैम के अंदर जब तक हमारा कंप्यूटर क्या है, वर्क करता है, यानी कि ऑन रहता है। The program or work you execute on the computer also gets stored in RAM temporarily till the time the computer is running. जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक आपने कोई भी वर्क किया है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, वो सब तब तक रैम में ही रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर क्या है, वर्क कर रहा है, यानी कि ऑन है, ऑफ नहीं हुआ है। ओके, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं? वोलाटाइल, it loses its content when the power is switched off. जैसे ही पावर स्विच ऑफ होगी, जितना भी रैम में कंटेंट था वो सब क्या हो जाएगा, रिमूव। ओके, दैट इज वाई वी कॉल इट वोलाटाइल मेमोरी। हम इसे वोलाटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करते हैं तो जो भी डेटा रैम के अंदर होता है वो सब क्या हो जाता है, रिमूव। For this reason, you must save all items you may need. ओके, जो भी आपको आइटम नीड होती है, ज़रूरत है फ्यूचर के अंदर, उनको आपको क्या करना चाहिए, सेव। सेविंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। सेविंग क्या प्रोसेस होती है, कोई भी डेटा को कॉपी करना रैम टू हार्ड डिस्क। कोई भी डेटा हमारा रैम में है, अगर हम उसे सेव कर देंगे तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हार्ड डिस्क में। ओके, next is update your knowledge.
A peripheral device is the device you connect to a computer to expand its capabilities. Example: keyboard, mouse, microphone, monitor, printer, scanner, external hard disk, webcam, speakers. Okay, so these all are peripheral devices we can connect to the computer so that the capability of computer can be extended. Like keyboard is used for typing, mouse is used for clicking or selecting anything. Okay, same like microphone, speakers, monitors, printers, these all are used for we can connect to the computer so that we can एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर को यानी कि वेब कैम हम लाइव चैट के लिए यूज़ करते हैं, स्पीकर्स हमें कुछ भी म्यूजिक सुनना है या एनीथिंग, प्रिंटर प्रिंट आउट्स के लिए, स्कैनर स्कैनिंग के लिए, मॉनिटर जो स्क्रीन आपको दिख रही है. ओके, तो दिस ऑल आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. क्लियर? नेक्स्ट इज इफ द प्रोसेसर इज द ब्रेन as it controls every device of computer, then motherboard is certainly the spine onto which all other devices are connected. In our body spine होती है, उसमें क्या होती है, all bones are connected, most of the bones are connected. Same like कंप्यूटर की स्पाइन क्या है, मदरबोर्ड, बिकॉज ऑन द मदरबोर्ड मोस्ट ऑफ द ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. सो मदरबोर्ड क्या है, इट्स द स्पाइन ऑफ द कंप्यूटर. ओके, next topic is ROM. What is ROM? Read only memory. Like its name, read only memory. RAM is the read only memory from which the information can be only be read. इसमें क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को ओनली रीड कर सकते हैं. As the name read only suggests, the data on रोम चिप कैन नॉट बी मॉडिफाइड. जो भी डेटा रोम में सेव है उसको हम मॉडिफाई यानी कि चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, ना ही हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, ना ही हम कुछ राइट कर सकते हैं, ना ही उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. रोम स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी परमानेंट. जो डेटा हमें परमानेंट कंप्यूटर के अंदर सेव चाहिए, दैट वी राइट और स्टोर ऑन रोम. Okay, this is the picture of ROM. Its contents are created at the time of manufacturing and cannot be changed. इस पे जो भी कंटेंट हम सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, बनाते टाइम, जब कंप्यूटर बन रहा है, ये रोम चिप बन रही है, उसी टाइम उस पर क्रिएट किया जाता है, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकता. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू गेट स्टार्टेड. रोम चिप किस में हेल्प करती है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं. ओके, रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी. रैम क्या थी, वोलाटाइल मेमोरी, बट रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी. वाई? बिकॉज दैट मीन्स इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. इसका कंटेंट लॉस्ट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा जब हम पावर स्विच ऑफ कर देंगे. दैट इज वाई वी कॉल इट नॉन वोलाटाइल मेमोरी. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क ड्राइव्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क ड्राइव्स. Disk drives are used for storing data, instruction and information for future use. Why we are using disk drive? इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. हमें फ्यूचर में कोई भी डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम सब किस में स्टोर करते हैं, डिस्क ड्राइव. सम ड्राइव्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन. ओके, कुछ ड्राइव्स हम सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए यूज करते हैं. हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम, DVD ड्राइव एंड ब्लू-रे ड्राइव आर द ड्राइव्स फिटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये सब क्या होती हैं, ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम यानी कि हमारे सिस्टम यूनिट में क्या होती हैं, ऑलरेडी फिट होती हैं. ओके, फर्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव. द हार्ड disk drive is used to store data and information for future use. Okay, most computers have one hard disk located inside the system unit. सभी कंप्यूटर सिस्टम में, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क कहाँ होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर ऑलरेडी लोकेट होती है, यानी कि होती ही है. नेक्स्ट इज CD रोम, DVD ड्राइव. अ CD रोम DVD drive reads information stored on compact discs or DVDs. What is the full form of CD? Compact discs. Compact disc. Okay.
full form of CD is compact disc. Or what is the full form of DVD? Digital video disc or digital versatile disc. You have to write these two full form in your book. DVD's full form is digital video disc or digital versatile disc. Okay, so these all are we used to store information in computer. Okay, Blu-ray drives. A Blu-ray drives reads information stores on compact disc, DVDs और Blu-ray disc. ओके, जो ब्लू-रे ड्राइव क्या होती है, ये भी क्या करती है, इंफॉर्मेशन रीड करती है कहाँ पर, जो स्टोर होती है सीडीज में, डीवीडीज में और ब्लू-रे डिस्क में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. Many personal computers plug in standard wall outlets which supply an alternating current AC of 115 to 120 volts. अब नॉर्मली हम जो कंप्यूटर का जो स्विच होता है वो हम स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट्स यानी कि जो नॉर्मल हमारे घर पे प्लग्स होते हैं उसमें लगाते हैं, विच जो कि कितनी पावर सप्लाई करता है, ऑल्टरनेटिव करंट होता है यानी कि कितना करंट सप्लाई करता है, 115 टू 120 वोल्ट्स कि वो करंट पास आउट करता है. दिस टाइप ऑफ पावर इज अनसुटेबल फॉर यूज विद द कंप्यूटर. ओके, बट ये जो इतनी हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हमें कंप्यूटर के लिए अनसुटेबल होती है यानी कि हमें इतनी सुटेबल नहीं होती है. कंप्यूटर को कितना रिक्वायर्ड होता है, विच रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट करंट DC रेंजिंग फ्रॉम 5 टू मोर देन 15 वोल्ट्स. एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर के लिए हमें कितना चाहिए, 5 टू मोर देन 15 वोल्ट्स, इतना ही चाहिए. बट हम जो नॉर्मली हम लगाते हैं हमारे कंप्यूटर को, अगर हम नॉर्मल वॉल आउटलेट्स में लगाते हैं तो वो कितना पावर सप्लाई करता है, कितना करंट पास करता है, 115 टू 120. बट हमें चाहिए कितना, 5 टू 15 ओनली. तो दैट इज वाई हम क्या यूज करते हैं, द SMPS यानी कि स्विच टू मोड पावर सप्लाई यूज करते हैं. दैट कन्वर्ट्स द वॉल आउटलेट AC पावर इनटू DC यानी कि जो हाई पावर करंट आ रहा है उसको किसको कन्वर्ट कर देता है, DC में कन्वर्ट कर देता है, इतने कम करंट में कन्वर्ट कर देता है. ओके, दिस इज अ फैन बिल्ड इनटू द पावर सप्लाई दैट कीप्स द पावर सप्लाई कूल. ये एक टाइप का, ये देखिए ये एक टाइप का फैन होता है जो हर कंप्यूटर में लगा होता है, सो दैट वो कंप्यूटर को कूल रखता है. जैसे कंप्यूटर को हम यूज करते हैं तो उसकी हीट जनरेट करता है, तो उसको कूल करने के लिए ये एक टाइप का फैन हर कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, सो दैट कंप्यूटर क्या रहे, कूल यानी कि ठंडा होता रहे, गर्म नहीं हो, उसकी हीट जनरेट ज्यादा ना हो और वो ज्यादा गर्म ना हो. सो समझ में आ गया, दिस इज SMPS. नेक्स्ट इज अडेप्टर कार्ड्स. What is adapter cards? An adapter card is a circuit board that is fitted in a socket on motherboard. ये motherboard पे ही लगा होता है. ओके, it enhances the functions of various components of computer. ये क्या करता है, कंप्यूटर के जो भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं उनको एनहेंस करता है यानी कि बढ़ाता है. सम पॉपुलर अडेप्टर कार्ड्स आर साउंड कार्ड्स, video cards, modem cards, network cards, etc. Nowadays, all the latest motherboards include all necessary capabilities and do not require adapter cards. पहले ये adapter card यूज होते थे, but now the days, आजकल में ये adapter cards यूज नहीं होते हैं because already ये सभी इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. Some motherboards may require adapter cards to provide capabilities such as sound or video. तो हमें साउंड और वीडियो के लिए तो कुछ अडेप्टर कार्ड्स चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आजकल हमें ये अडेप्टर कार्ड्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्ट्स. पोर्ट्स आर अ नंबर ऑफ होल्स एंड स्लॉट्स इनटू विच यू प्लग इन कंप्यूटर डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज आर सिस्टम बोर्ड फ्रॉम बैक साइड. ये हमारा सिस्टम बोर्ड क्या है, पीछे की साइड से, बैक साइड से है. ओके, सो दीज ऑल आर पोर्ट्स. सी, दिस इज पोर्ट, दीज ऑल आर द डिफरेंट पोर्ट्स इन विच वी कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस. ओके, लाइक इसमें हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं. दीज ऑल आर कनेक्टेड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट. इन अ टिपिकल
desktop computer, the back of system unit contains ports. In a laptop, these ports are on the sides. क्या होता है, एक जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें तो ये बैक साइड में होते हैं, बट लैपटॉप में क्या होते हैं, आप दोनों साइड देखोगे तो ये पोर्ट्स होते हैं. ओके, पावर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट्स, HDMI पोर्ट्स, मॉनिटर पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, स्पीकर पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट. वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट. So today's our last topic is popular ports. First is USB ports, Universal Serial Bus. USB की full form क्या होती है? Universal Serial Bus. Or the USB port connect device such as mouse, keyboard, printer, etc. to the computer. USB port में हम क्या connect करते हैं? Mouse, keyboard, printer. Okay. Next is VGA ports. VGA port क्या होता है? Display ports. Display ports connects the monitor to the computer using the cable. ओके, केबल के थ्रू हम डिस्प्ले पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं. दीज कैन बी डिफरेंट टाइप लाइक वीडियो ग्राफिक रे, VGA. ओके, VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक एरे. ओके, वीडियो ग्राफिक्स एरे. एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. ये हम सब, ये भी पीछे हमारे होते हैं, जो सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे होते हैं, VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट. ओके, नेक्स्ट इज ऑडियो पोर्ट. ऑडियो पोर्ट के नेम से ही क्लियर है. ऑडियो पोर्ट्स हेल्प टू कनेक्ट माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन्स टू द कंप्यूटर सिस्टम. आपको अगर कोई भी अपने हेडफोन से कोई म्यूजिक सुनना है या कोई लाइव चैट करनी है, तो हम ऑडियो पोर्ट्स का यूज़ करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे माइक्रो पोर्ट्स होते हैं और स्पीकर पोर्ट्स होते हैं. इसमें हम अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं और माइक्रोफोन्स. ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क पोर्ट. इट इज़ यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड नेटवर्क केबल्स. इसमें हम क्या कनेक्ट करते हैं? नेटवर्क और इंटरनेट केबल्स को. ओके, लास्ट इज पावर पोर्ट. पावर पोर्ट क्या होता है? इट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई. इसमें हम पावर सप्लाई के लिए हम यूज करते हैं पावर सप्लाई पोर्ट को. ओके, इसमें हम कनेक्ट करते हैं केबल जो कि हमें पावर प्रोवाइड करती है. ओके, सो दिस इज द आर computer from inside. Oh, I hope all the topics you have cleared, but if you have any kind of doubt, you can personally message to me. Thank you. Bye bye.